Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is playlist interview questions, we are going to see a problem of interviews. Okay, and but before this, let's just see what is Newton School. So basically, as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program they have for you is pay after placement program, in which they will train you for 6 months, and after that they will also get you placed in these different working top companies, okay, like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's. So they will make you a full stack developer, and then they will also get you placed in these companies. You can also see here that application for full stack development course is open right now. So if you want to apply, just come to their website and apply for this course. Okay, most amazing thing about this program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for minimum of 5 lakh CTC. Okay, so most amazing thing was this about this program. If you want to apply, just come to their website and apply now. Second thing they have for you is their Launchpad initiative, in which they are providing you different courses related to computer science, and especially for free. Just come to their website, opt any course, complete it. You will also get certificate after completion of any courses. Okay, and you can also do quizzes here. You can have coding contests here, participate in them and get gift vouchers and cash prizes and referrals to big companies. Okay, and you can also use Newton School ID for coding purposes. Okay, and at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube, subscribe this YouTube channel and get the most out of it. Like, we are updating these playlists regularly for companies placement. You have playlist for online assessments and interviews, for dynamic programming, for DSA, for languages like C++, JavaScript, for projects, for everything. Just go to YouTube, subscribe this YouTube channel and like this video. Now let's just see today's video, and this is an interview question. That's why this question is in playlist interview questions. Okay, and today's question is intersection of two linked list. Okay, or you can also say that intersection of two y linked list. Okay, so basically ये intersection of two linked list नहीं है, ये एक y type of linked list का joining point बताने का क्वेश्चन है. ठीक है, तो कुछ डाउट्स इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ सकते हैं. हम बहुत क्लियरली इसकी अप्रोच, बेस्ट अप्रोच देखेंगे. ठीक है, और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यूज. ठीक है, अच्छी कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा जाता है. सम कंपनीज जिसके इंटरव्यूज में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दैट आर Amazon एंड हैश्ड इन बाय Deloitte, एंड दे आर मोर डिफरेंट कंपनीज जिसमें ये पूछा गया है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी व्हाट द क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज. Given the heads of two singly linked lists, head A and head B, return the node at which two linked lists intersects. If two linked lists have no intersection at all, return null. Okay, I hope ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिख रही होगी, मुझसे कवर नहीं हो रही होगी. तो बेसिकली है क्या, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ. हमें दो लिंक लिस्ट के हेड दिए गए हैं, हेड ए एंड हेड बी. ठीक है, हमें इन दोनों लिंक लिस्ट ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही हैं वो नोड रिटर्न करना है सिंपली. ठीक है, अब मैंने वाई लिंक लिस्ट क्यों बोला था, तो ये अभी दिखाता हूं तुम्हें. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दिस इज अ लिंक लिस्ट ए एंड बी. अब ए जो लिंक लिस्ट है वो तुम्हारी ऐसे है कुछ, बी लिंक लिस्ट जो है वो तुम्हारी ऐसे है. अब तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे वाई काइंड ऑफ. ठीक है, तो तुम्हें एग्जैक्टली बताना क्या है, तुम्हें ये नोड बताना है जहां पे ये दोनों लिंक लिस्ट आके इंटरसेक्ट हो रही हैं. ठीक है, फाइन. अब ये लिंक लिस्ट कैसे डिफरेंट है तुम्हारी, दो वाई लिंक लिस्ट ही क्यों है यहाँ पे, एंड वैसी कोई लिंक लिस्ट नहीं है. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट तुम ऐसा भी समझ सकते हो. ये तुम्हारी एक लिंक लिस्ट है और ये तुम्हारी एक लिंक लिस्ट है. ठीक है, ये नल है और ये भी नल है. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि ये वाला पॉइंटर तुम्हें बताना हो जहां पे दोनों की वैल्यूज सेम हो रही हैं. तो तुम ऐसे भी जब एड्रेस सेम हो जाएगा तो तुम बोल दोगे, किसी एक नोड का एड्रेस सेम हो गया तो तुम बोल दोगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं. ठीक है, फाइन. तो ये तुम्हारा जो लिंक, ये जो क्वेश्चन जो हम अभी देख रहे हैं, दैट इज एन स्पेसिफिक क्वेश्चन. ठीक है, जिसपे तुम्हें एक वाई स्ट्रक्चर दिया गया है नोड्स का, और तुम्हें वाई पे जो वो एंड पॉइंट होता है, वाई पे ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ऑफ टू लाइन्स, तुम्हें ये बताना है. ठीक है, एग्जैक्टली फाइन. अब ये जो y है
इसको हमने काइंड ऑफ टू लिंक लिस्ट के जैसे ट्रीट किया है, जिसमें ये एक लिंक लिस्ट है एंड ये जो तुम्हारी दूसरी लिंक लिस्ट है, और तुम्हें C1 पास करना है एज एन आंसर, C1 रिटर्न करना है। फाइन, अब इनपुट कैसे मिलेगा? यू हैव टू लिंक लिस्ट, फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ इंटरसेक्ट वैल्यू, ठीक है, एंड सेकेंड विल बी लिस्ट ए एंड थर्ड विल बी लिस्ट बी, स्किप ए एंड स्किप बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ है, और इंटरसेक्शन की वैल्यू तुम्हारी 8 है, ठीक है। तो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बन रही है। तुम्हें इनपुट से ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनपुट तुम्हें रेगुलरली लेने के लिए नहीं बोला जाता है। अब ये है क्या एग्जैक्टली, ये मैं समझा देता हूँ तुम्हें। तो ये है बेसिकली ऐसा, स्किप ए एंड स्किप बी ये है कि तुम्हारे 2 नोड्स स्टार्टिंग में हैं और स्किप बी तुम्हारे 3 नोड्स स्टार्टिंग में है, ठीक है। टोटल नोड्स की वैल्यू कितनी है? 3 2 5 3 8, टोटल वैल्यूज हैं 8, ठीक है। एंड जो वैल्यूज यहाँ पे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट वैल्यू एग्जैक्टली है क्या तुम्हारी, जो है वो आंसर है, सॉरी, ठीक है। फिर तुम्हारी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी है, 4 1 8 4 5, ठीक है। और जो तुम्हारी लिस्ट भी है वो कैसी है, 5 6 1 8 4 5। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? 8 में। तो दैट्स वाई इंटरसेक्टेड एट 8। तुम्हें ये रिटर्न करना है, ठीक है। द इंटरसेक्टेड नोड वैल्यू इज 8, नोट दैट दिस मस्ट नॉट बी 0 इफ द टू लिस्ट इंटरसेक्ट। From the head of A, it reads 4 1 8 4 5. From the head of B, it reads this. There are 2 nodes before the intersected node list in A, and there are 3 nodes before the intersected node in B. तो exactly ये चीज है तुम्हारी, ठीक है। Fine. Now what you have to return? Simply intersection node. अब तुम बोलोगे कि अगर मुझे intersection node निकालना है, मैं simply क्या कर सकता हूँ? मैं simply हर node के लिए check कर सकता हूँ that whether this node is intersection node or not. If this is, मैं वो वाला नोड रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज नो, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो अप्रोच तुमने बताई वो n² अप्रोच है, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू सी अ अप्रोच बेटर देन दिस। अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है? सपोज मेरे पास हेड ऑफ ए है, ठीक है, और ये हेड ऑफ बी है मेरा। अब हेड ऑफ ए और हेड ऑफ बी में मैं दोनों, मेरे पास 2 पॉइंटर है, पॉइंटर हेड ऑफ ए, पॉइंटर हेड ऑफ बी इन द इनपुट, ठीक है। फाइन, उसके बाद मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? तुम एग्जैक्टली देखोगे, अगर मैं हेड ए और हेड बी को दोनों को ट्रैवर्स करना शुरू करूं, ठीक है, हेड बी से भी ट्रैवर्स करना शुरू करूं, तो एग्जैक्टली होगा क्या? 2 ट्रैवर्सल के बाद तुम्हारा जो हेड ए का पॉइंटर है वो C1 से पास करेगा, बट हेड बी का जो पॉइंटर है वो 3 ट्रैवर्सल के बाद C1 से पास करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंटर कहीं पे भी आके अभी तो मीट नहीं करेंगे, फॉर नाउ दे डोंट मीट, ठीक है। बट एग्जैक्टली होगा क्या अगर मैं हेड ए के पॉइंटर और हेड बी के पॉइंटर के बीच ये गैप मेंटेन कर दूं? मैंने तुम्हें लिंक लिस्ट में बताया था एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि बेसिकली होता क्या है, जब भी हम 2 पॉइंटर्स लिंक लिस्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मेनली जो 2 लिंक लिस्ट के बीच का, उन दोनों पॉइंटर्स का जो गैप हमें चाहिए होता है, हमें वो गैप मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, मान लो अगर मैं ये जो हेड ए और हेड बी 2 पॉइंटर है मेरे पास, ठीक है, पॉइंटर 1 था ये P1 मान लो, और ये पॉइंटर 2 था ये P2 मान लो। P1 जो है वो C1 में आएगा 2 ट्रैवर्सल्स के बाद, 2 नोड्स में ट्रैवर्स करने के बाद। P2 जो है वो C में आएगा 3 नोड्स में ट्रैवर्स करने के बाद, ओके। तो यहाँ पे एक गैप कितना आ रहा है? 3 और 2 में एक का गैप आ रहा है, 3 - 2 1। तो बेसिकली P1 और P2 मीट कर जाते, बट because there is a gap of 1 they will not meet with each other right now, okay, अभी वो मीट नहीं करेंगे। तो हम इन दोनों को मीट कैसे करा सकते हैं? हमें किसी तरह बेसिकली करना क्या है, हमें P1 और P2 के बीच ये 1 का गैप मेंटेन करना है, ठीक है। किसी तरह हो क्या, जो P2 तुम्हारा यहां पे पॉइंट कर रहा है वो P2 तुम्हारा यहां पे पॉइंट करने लग जाए, ठीक है, और P1 तुम्हारा यहीं पे पॉइंट करे। तो बेसिकली होगा क्या, फिर 2 नोड के ट्रैवर्सल के बाद ये यहां पे आके मीट कर जाएंगे। तो अब ये गैप कैसे मेंटेन कराते हैं, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक तुम्हें बस एक जाननी है, ठीक है, ये गैप मेंटेन करने की। बेसिकली होगा क्या, सपोज वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यहां पे मैंने एक P1 पॉइंटर लिया, ठीक है, और मैंने एक P2 पॉइंटर यहां पे लिया, ठीक है। मैंने ट्रैवर्सल शुरू किया, एक ट्रैवर्सल के बाद मान लो 5 ट्रैवर्सल, मैंने 5 नोड ट्रैवर्स कर लिए P1 से, ठीक है, ये 1 2 3 4 5।
अब हुआ क्या एग्जैक्टली जब P1 यहां पे आया, इसके बाद नल है। ओके, व्हाट आई विल सिंपली डू, यहां पे मेरा P1 आ गया आफ्टर 5 ट्रेवर्सल्स, P1 यहां पे था। व्हाट आई विल सिंपली डू, P1 जो है मैं उसको क्या बना दूंगा अब, हेड B के बराबर, जैसे ही P1 नल हो गया। ठीक है, अब मेरा P1 यहां पे आ गया। जब P1 यहां पे आया तो आफ्टर 5 ट्रेवर्सल्स P2 कहां पे होगा, P2 यहां पे होगा। ठीक है, एग्जैक्टली और मेरा P1 कहां पे होगा, P1 अभी यहां पे होगा। तो बेसिकली राइट नाउ अभी मेरा गैप कितने का बन गया, 1 2 3 4 5 का गैप बन गया। अब एग्जैक्टली जब एक ट्रैवर्सल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये नोड है, ठीक, जो ये नोड है, ये नोड बच रहा है। ठीक है, और यही P1 और P2 में मेरा डिफरेंस है। P1 और P2 में कितने का डिफरेंस था मेरा, एग्जैक्टली 1 नोड का, और ये नोड मेरा यहां पे बच रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, P1 यहां पे था, जैसे ही मैंने किया P2, जैसे ही P2 नल हुआ, P2 अगले ट्राइवर्सल में P2 नल होगा। ठीक है, तो मैं P2 को किसके इक्वल बना दूंगा, P2 को पॉइंट कर दूंगा हेड A में। ठीक है, और उस एक ट्राइवर्सल के बाद P1 कहां पे आ जाएगा, एग्जैक्टली यहां पे। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या, P1 और P2 अब ऑपोजिट लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, बट दे हैव अ गैप ऑफ 1 नोड बिटवीन देम। ओके, एंड ये मेरा मोटिव था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दिस वाज माय मोटिव, एंड ये मोटिव मैंने ऐसे अचीव किया। अब एग्जैक्टली लॉजिक इसके पीछे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, काइंड ऑफ कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली मैंने किया क्या, मेरे पास, तुम इसको एरे में समझो। ठीक है, ये साइज 4 की एरे थी, ये साइज 5 की एरे थी। मैं 2 पॉइंटर्स मैंने यहां और यहां चलाए। ठीक है, अब मुझे इन दोनों पॉइंटर्स के बीच 1 का गैप बनाना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 4 के बाद चला, और जैसे ही दोनों यहां पे आ जाएंगे, दोनों पॉइंटर यहां से हटके एक पॉइंटर यहां पे, ठीक है, जैसे ही ये नल हुआ, मैं इस पॉइंटर को क्या करूंगा, सिंपली यहां पे ले आऊंगा। फिर एक एक बार दोनों को चलाया, अब मेरा ये यहां पे है और ये यहां पे आए। ठीक है, अब ये लास्ट में आ गया, तो मैं एग्जैक्टली इसको क्या करूंगा, यहां पे ले आऊंगा। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप मेंटेन हो गया, नाउ आई हैव मेंटेन द गैप ऑफ 1 नोड बिटवीन दीज 2 पॉइंटर्स, एंड दिस वाज माय मोटिव। ठीक है, नाउ जब मैंने इन दोनों के बीच में एक नोड का गैप मेंटेन कर लिया, अब ये नेक्स्ट ट्रैवर्सल में, जब ये नेक्स्ट ट्रैवर्सल करेंगे वाया दिस लिंक लिस्ट, दे विल मीट एट दिस नोड C1। ओके, एंड व्हेनेवर मेरे P1 इज इक्वल्स टू P2 होगा, आई विल break the loop and I will simply say, or I will return P1 from here, that I found this thing. Okay, now second thing, अगर मुझे एक ट्रैवर्सल के बाद P1 और P2 बराबर नहीं मिलते हैं, I will simply say that 0, यहां पे मेरा एक भी इंटरसेक्शन नहीं है, या फिर P1 और P2 मेरे एक साथ नल हो जाते हैं। ठीक है, P1 और P2 मेरे एक साथ नल हो जाते हैं। इन दैट केस ऑल्सो आई विल से कि ये कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। ये तुम्हारी एक ट्रिक है सिंपली, जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को चेक करती है, एंड ये ट्रिक तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए करनी थी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हाईलाइट कैसी थी, ये ट्रिक तुम्हारी जब भी काम करेगी जब ऑब्वियसली आफ्टर इंटरसेक्शन बोथ द लिस्ट हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स। Okay, so this trick will only work when after intersection point both the link list have same number of nodes. Okay, so this is the main highlight of the problem statement कि ये प्रॉब्लम जो है ये y लिंक लिस्ट के लिए थी, इंटरसेक्शन ऑफ 2 y लिंक लिस्ट। ठीक है, दैट्स वाई ये जो टेल है वो इक्वल लेंथ की है दोनों लिंक लिस्ट में। अगर ये लिंक लिस्ट की टेल मैं चेंज कर दूं, लिंक लिस्ट y यहां से दूसरी बन जाए, तो ये जो ट्रिक है ये ट्रिक काम नहीं करेगी। सो दिस वाज द मेन हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ आई एम शोइंग यू द कोड फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। वी हैव 3 वैल्यूज, फर्स्ट इज वैल्यू, सेकंड इज नेक्स्ट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, एंड थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर द लिंक लिस्ट नोड। ठीक है, जब भी तुम्हें कोई न्यू नोड बनाना है तो इस कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। नाउ आई हैव अ फंक्शन इन विच आई हैव 2 आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज pointer to head A, pointer to head B. Okay,
I will make 2 pointers, that is pointer P1 and pointer P2 to traverse in both the linked list. Firstly मैं P1 को head A के बराबर बनाऊंगा and P2 को head B के इक्वल. I will simply check whether P1 और P2 में से कोई null तो नहीं है. If it is, I will simply return 0 because I'm not going to get any intersection between these two linked lists. Okay. Now I'll simply loop for these linked lists. मैं P1 does not is equals to null, P2 does not is equals to null, and until I don't get P1 does not is equals to P2. Okay. ये कौन सा केस होगा जो मैंने ये थर्ड केस डाला, दैट इज P1 does not is equals to P2. सिंपली चेक, अगर यहाँ पे भी दो नोड्स होते और ये नोड यहाँ पे ना होता, यहाँ पे भी दो नोड्स होते, तो P1 और P2 पहले ही लूप में जाके P1 is equals to P2 हो जाता, एंड इन दैट केस ये लूप मेरा ब्रेक हो जाता, एंड in the loop inside I have written if P1 is equals to P2 हो रहा है, I will simply return P1 from here. Okay. Otherwise मुझे लूप में करना क्या है, सिंपली P1 को P1 next ट्रावर्सल करना है, एंड whenever P1 is equals to null हो रहा है तो मैं P1 को कहाँ कर दूंगा, P1 को सिंपली हेड B को पॉइंट करा दूंगा, एंड जब P2 null हो जाएगा तो P2 को हेड A के पॉइंट करा दूंगा. ठीक है. एंड एक बार ये ट्रावर्सल पूरा हो जाएगा, सिंगल ट्रावर्सल जब लिंक लिस्ट का पूरा हो जाएगा और एक बार P1 और P2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, आफ्टर दैट P1 और P2 कहीं पे आके मीट कर जाएंगे. एंड व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड द गैप ऑफ डिफरेंस. Okay, gap of difference nodes between these two linked lists. Okay, so if you still have any doubt, at the end I will simply return P1 when this loop ends. Okay. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. I will explain you again. And this question is really important from the point of interviews. I have already told you in which companies this question has came. And if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel, Code Kitchen Newton School, and like this video and subscribe this YouTube channel. And if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, just go apply for their current batch, that is full stack development course, and get placed in these top companies for minimum of 5 lakh CTC. And as you know, benefit of Pay After Placement program, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies for minimum of 5 lakh CTC. Thank you guys for watching this video. Subscribe this YouTube channel and like this video.